Good morning, students. Today we are doing your first chapter from the subject history, and this is for the class 10th English medium. Let's begin with the question answer. Your first question is, in what way do you think this print, that means यहाँ पे एक फिगर दिया गया है फिगर 1 में और बताया गया है कि इस फिगर को देख के आप क्या समझते हैं. So the answer is कि the print visualize the dream of the world made up of democratic and social republics. ये जो एक पिक्चर है ये हमें दिखाता है, एक ड्रीम दिखाता है एक लोकतंत्र देश का और एक गणतंत्र देश का. सेकेंड, द प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिकन मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्किंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय. यूरोप के लोग दिखाता है, अमेरिकन मैन दिखाता है, मैन एंड वुमेन बोथ दिखाता है कि जैसे वो ट्रेन में पास कर रहे हों. Third, in the print of female figure was shown which bear the torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of men in the other hand. एक फीमेल दिखाते हैं जिसके हाथ में एक ज्ञान की लाइट होती है. Next is on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutionalism. Now we is in Soros utopian vision the people of the world are grouped as indistinct नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. यहाँ पे कैसे लोगों को जाना जाता है? उनके फ्लैग से और नेशनल कॉस्ट्यूम से जाना जाता है. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन. ये किसने बनाया था? सोरियू ने बनाया था और तब तो जर्मन पीपल एक साथ मिलकर रहते भी नहीं थे. नाउ द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Australia, the kingdom of the two slices, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and the angels gaze upon the scene. In this way, figure depicts an utopian vision as it was unlikely to exist. एक ऐसा विजन दिखाता है ये यूरोप का जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक, इतना ज़्यादा रिपब्लिक और लेडीज़ को कमांड दी गई है, लेडीज़ एनलाइटेड है, ऐसा जो कि एक्चुअल में वहाँ पर है नहीं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज read and understand them. Why in his view are nationalism important क्यों होता है nationalism? So the answer is according to Ernest Renan, the attributes of a nation are as follows. क्या क्या हो सकते हैं attributes? पहला, a nation is the culmination of a long past of the endeavors, sacrifice and the devotion, and therefore a nation in a large scale solidarity. क्या कह रहे हैं ये कि एक देश में एकता होनी चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए. A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. कोई भी देश ये चाहता नहीं है कि अपने ही देश के उसके देश के लोग उसके खिलाफ सोचे या कोई भी ऐसी भावना अपने मन में रखे. The existence of nation is a guarantee of liberty. एक लिबर्टी, एक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है अगर आपको नागरिकता वहाँ पे अच्छी हो तो. विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर. और ये सब चला जाता है अगर देश का कानून इस प्रकार का हो कि एक ही कानून हो, एक ही राजा हो, एंड सो ऑन. In his view, the importance of the nation are, first is the concept and practice of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory. Second, the concept of nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and share history. The commonness did not exist from time immemorial. It was fought through struggle, through the action of the leaders of the common people. क्या है इनकी नज़रों में इम्पोर्टेंस नेशनलिज्म की कि लोग मिलजुल के रहे, वहाँ पे कोई तानाशाह ना हो, गणतंत्र हो, लोकतंत्र हो, लोगों की जो भी इच्छा हो उसको पूरा किया जाए. Now next question is describe the political ends that list hopes to achieve through economic measures. The list hopes to achieve through economic measures. अगर हमें इकोनॉमिक मेजर्स को अचीव करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, लोगों को स्वतंत्रता देनी होगी. सेकंड, इक्वालिटी देनी पड़ेगी, कानून के सामने सभी को एक जैसे
थर्ड, एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उनकी इच्छा से उसे एम्फेसाइज करना चाहिए. द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, ऑटोक्रेसी मतलब किसी एक की तानाशाह को ख़त्म करना है. द इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वॉयलेट नहीं करना चाहिए. अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, संसद से एक ऐसा संविधान बन के आना चाहिए जिसमें सबकी रजामंदी हो. नाउ अदर इम्पॉर्टेंट questions, MCQs. First is what did the idea of la patrie and les citoyens signify in the French Revolution? इन दो शब्दों का क्या मीनिंग होता है? सो द आंसर फॉर इट इज द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स. क्या होता है? फादरलैंड एंड द सिटीजन्स. सेकेंड इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोएशियन सॉवरेन वॉज टू. क्या फंक्शन था प्रोएशियन यानी कि जर्मन लोगों का? तो उनका मेन फंक्शन था एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, उन्हें ख़त्म करना था. थर्ड इज द हब्सबर्ग वर रूलर्स ऑफ. हब्सबर्ग कहाँ के रूलर्स थे? तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी के रूलर्स थे. फोर्थ है द फोर यूरोपियन पावर हु कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन वर. फोर्थ का ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ब्रिटेन एंड द रशिया. नाउ नेक्स्ट इज Who said these words? When France sneezes, the rest of the Europe catches a cold. जब फ्रांस छींकेगा तो पूरा का पूरा यूरोप में जुकाम फैल जाएगा. ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैटरनिक ने. Who among the following founded the underground societies, namely Young Italy in the Marseillese? किसने ये खोजी थी? तो ये थे ग्यूसी मैजिनी. The Habsburg Empire that ruled Austria Hungary did not include. कौन नहीं था इनमें शामिल? बवारिया नहीं था इनमें शामिल. नाउ एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? कौन सा सही है? तो ब्रिटानिया द ब्रिटिश नेशन इज द करेक्ट वन. नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707? क्या था रिजल्ट उसका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एलोगरी ऑफ द फ्रेंच नेशन? कौन थे? तो मैरिने थे. व्हाट डज द क्रॉन ऑफ ओक लीव्स वॉर्न बाय द जर्मेनिया स्टैंड फॉर? आंसर इज heroism. 12th, the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini was born in. कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो the answer is Genoa. Now fill in the blanks. In Germany, the measuring unit LA was used to measure cloth. The Frankfurt Parliament was convened in 1848 at the Church of St. Paul's. Treaty of Constantinople ट्रीटी रिकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. फोर्थ हो जाएगा आपका द प्रोएशियन किंग विलियम वन. फिफ्थ ब्लैंक हो जाएगा वॉल्फेटोन. सिक्स्थ हो जाएगा जर्मेनिया. सेवेंथ हो जाएंगे नेपोलियनिक कोड. एट्थ हो जाएंगे ड्यूक मैटनरिक. नाइन्थ हो जाएगा 1831 एंड 10th हो जाएगा विलियम वॉल्फ. ओके, नाउ आंसर इन द वन वर्ड. When Napoleon invaded Italy in 1790. In which year was Congress of Vienna held? In 1815. Who was described as the most dangerous enemy of social order by Duque Manrique? Giuseppe Mazzini. Who celebrated national struggle though Polanyi and Mazurka? Karol Kurpinski. Who was proclaimed as the king of the United Italy in 1861? Answer is Victor Emmanuel II. Sixth, who was responsible for the unification of the Germany? Answer is Bismarck. Seventh, who was not interested in exceeding their own control over the Balkans? Seventh का आंसर हो जाएगा Switzerland. Eighth was, when was the first upheaval took place in France? 8th July 1830. What do you mean by the suffrage, the right to vote? Who organized funds for the Greek War of Independence? किसने ऑर्गेनाइज किए थे? तो आंसर हो जाएगा द ब्रिटिश पोएट एंड लॉर्ड ब्रायन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? ये वही है जिन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाए थे. तो फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared a series of footprints in 1848 for visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republics. तो इन्होंने क्या किया था? अपने पिक्चर्स के थ्रू बताया था कि कैसे हमारे देश को होना चाहिए. Now next question is, what do you mean by absolutism?
Absolutist is a form of government which generally refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Monarchical मतलब कि कोई एक व्यक्ति शासन करे पूरे देश पे, उसका मतलब होता है absolutist. Now when did the first clear expression of nationalism came in France? कब आया? तो 1789 में आया. Now fourth is, how did the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the body of French citizen? So the answer is, the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the body of French citizen, as the revolution brought political and constitutional changes. Now fifth is, what was the main aim of the French Revolution? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका क्या मेन उद्देश्य था? The main aim of the French revolutionaries was to introduce various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. एकता आए, लोगों को तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट करे, यही था उनका मेन उद्देश्य. Now sixth is, who started the settled Jacobin clubs? एक क्लब थे, किसने चालू किए थे? When the news of the events in France reached to different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up the Jacobin clubs. किस किसने बनाए थे? स्टूडेंट थे और बाकी की मिडिल क्लास के कुछ एजुकेटेड पीपल थे. नाउ सेवन, व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड? ये कोड क्या था? The Civil Code of 1804 is usually known as the Napoleonic Code. It did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. Now next question is, when industrialization began in England, France and German states? तो कब आया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड वन हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में आया था. बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, उनमें 19th सेंचुरी में आया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म से क्या समझते हैं? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री. लिबर का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality in the before law. कि सब स्वतंत्र रहे और कानून के सामने सबको बराबर हक मिले. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and clerical privileges. और लोगों का जो एक हक होता है, मतलब कोई एक व्यक्ति शासन करे, उसको खत्म करना. Now learn long type questions. First is, how did revolutionist ideas spread to the other countries? दूसरी जगह पे क्रांति के आइडिया कैसे पहुंचे? तो पहला, the revolutionists declared that it was the mission and the destiny of the French. यही हमारे फ्रांस का मिशन है और यही इसका डेस्टिनेशन है. नेशन टू लिबरेट द पीपल, सबको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे ऑफ द यूरोप फ्रॉम द डेप्टिज्म. सेकेंड था कि when the news of the events in France reached the different cities, जब यूरोप के बाकी के शहरों में भी बातें पहुंचने लगी तो वहाँ के बच्चों ने, वहाँ की स्टूडेंट्स ने और मिडिल क्लास के लोगों ने एक क्लब बनाया था. थर्ड, with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of the nationalism abroad. Now next question is, what was the reaction of the local populations in the areas conquered in the Napoleon? बाकी जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका क्या रिएक्शन था? तो पहला, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रूसेल, मेन्स, मिलान एंड वार्सा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी. जो फ्रेंच आर्मी है उनका स्वागत किया गया था इन जगहों पे. बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, बट बड़ी जल्दी ही ये खत्म हो गया. As it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom. जैसे उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो ये जो एक्साइटमेंट था चला गया लोगों का. Now third is, increased growth, increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies. क्या टैक्स बढ़ा दिए गए एंड बाकी की जगहों पे भी आर्मी ने कब्जा कर लिया. तो ये सब प्रॉब्लम आई और ये सब रिएक्शन वहाँ के आम जनता के देखने को मिले. नाउ 17th क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द पैचवर्क ऑफ द मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल इन द हैब्सबर्ग एम्पायर. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वहाँ के लोगों का रीजन कैसा था? द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया, हंगरी फॉर एग्जाम्पल, वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल. कैसे? It included the Alpine region, the Tyrol, Australia, and the Sutherland, as well as the Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking.
It also included the Italian speaking provinces of the Lombardy and the Venetia. Now question number 18 is, in what conservative regimes were set up in 1815 Europe? Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of the autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to the control who was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. And now next question is, what was the impact of the Act of Union Scotland? जो एक्ट आया था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? आंसर इज, द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन ऑन स्कॉटलैंड वॉज, पहला, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. उससे क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन बना, यूके बना. सेकेंड, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर. संसद में ज़्यादातर इंग्लिश लोग ही थे. द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्ट कल्चर एंड सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड. बाकी के लोगों के कल्चरों को धीरे धीरे करके दबाया गया, सिर्फ इंग्लिश के लोगों के कल्चर को बढ़ावा दिया गया. थर्ड, द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरेबल सेपरेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असेट देयर इंडिपेंडेंस. जो कैथोलिक लोग थे जब भी अपनी स्वतंत्रता चाहते थे तो उनको बुरे तरीके से उनके हक को दबाया जाता था. फोर्थ है, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज. उन्हें बोला गया कि आप आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे और वियर देयर नेशनल ड्रेसेस, और उनको खुद के स्कॉटिश कपड़े पहनने के लिए भी मना किया गया. लार्ज नंबर वर फोर्सली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बाकी के बहुत सारे लोगों को उनकी मातृभूमि से निकाल कर फेंका गया.